Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. Beta, today we are going to start next topic, reported speech. That is very important topic from the exam point of view and to make sentences. It will be helpful to you for learning this language and in writing skill. Okay, let's start the topic, reported speech. In reported speech, direct speech, there are two types of speech, direct speech and indirect speech. Okay, डायरेक्ट स्पीच कौन सा होता है? What I am saying to you, the same words you will tell to any other person, that is direct speech. And indirect speech, suppose I said to you, I will take your class today. Clear? That is direct speech. अगर आप the same words किसी और को जा कर के बताओगे तो डायरेक्ट ही रह जाएगा. ये आप ये बताओगे कि मैम ने ऐसा बोला कि मैंने आपको ऐसा बोला, आई सेड टू यू आई विल टेक योर क्लास टुडे. ओके, और यहाँ डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि आई की तो यही रह जाएगा, आई टोल्ड यू ओके दैट आई वुड टेक योर, यू क्योंकि यहाँ पर यू है तो योर ही रहेगा, क्लास दैट डे. ओके, नेक्स्ट है शी said to me, she said to me, I will solve this sum. Solve this sum, comma, inverted comma, close. In direct speech, there will be reporting verb and reported speech. That is called reporting verb. And that is called reported speech. ठीक है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाओगे आप? शी टोल्ड मी. क्लियर? शी टोल्ड मी, यहाँ पर क्या लगाएंगे? कंजंक्शन. शी टोल्ड मी दैट. ओके, आई इज द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन changes according to the subject of the reporting verb, and subject of the reporting verb is she. That she will का क्या हो जाएगा? would. would क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो said verb है, say, said, said, तो वह है V2 यानी past tense में है ये. Then rule is, if the reporting verb is in past tense, then the tense of the reported speech will be changed in indirect speech. She told me that she would solve that sum. That is, ये नहीं है, inverted comma removed. Okay, she told me, and conjunction is that she would solve. this का क्या हो जाएगा? that sum. Clear? That is indirect speech. Now till here
I have told you what is difference between direct speech and indirect speech. Direct speech is that you will tell the same words what I have told you to any other person, that is called direct speech. And the words that you change according to yourself, these are called indirect speech. Okay. Now some rules how to change direct speech to indirect speech. First of all, we will see that person. एक फॉर्मूला होता है SON 1 2 3 1 2 3. इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन. ओके बेटा. If the subject of the reported speech, if the subject of the reported speech is first person, then it will be changed according to the subject of the reporting verb. Clear? Next, if object of the if the subject of the reporting verb is in second person यानी you और first person यानी I, we. Clear? That is person. I, we, you. थर्ड पर्सन का मतलब नाउन और क्या हो गया थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, कोई नाउन. ओके. इफ द सब्जेक्ट ऑफ द reported speech is in first person, that it will be changed in according to the subject of the reporting verb. If the subject of the reported speech is in second person, then it will be changed according to the object of the reporting verb. If that is third person, he, she, it या कोई भी नेम है, they कोई भी नाउन है और भी नाउन और नेम है, then it will be changed according that it will no change. As for subject, O for object, and for no change. Clear? I revise all that thing. Reported speech. Today's topic is reported speech. There are two types of speech: direct speech, indirect speech. Clear? I said to you, I will take your class today. कि मैंने आपको कहा कि मैं आज आपकी क्लास लूँगा. ठीक है. दिस इज़ रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज़ रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. जो मैंने आपको स्पीच कहा. क्लियर? नेक्स्ट है शी सेड टू मी, that is reporting verb. I will solve this sum, that is reported speech. Reporting verb is in past tense, reported speech any tense there here may be, but the condition is that if tense of reporting verb is in past tense, past tense का पार्ट कोई भी हो सकता है, is in past tense, then the
tense of reported speech will be changed, otherwise only pronoun will be changed. अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, then only pronoun will be changed in reported of the reported speech in indirect speech. Okay, if the tense of reporting verb is in past tense, then the tense of reported speech will be changed, otherwise only pronoun will be changed. सिर्फ pronoun change होंगे बेटा, tense change नहीं होगा. क्लियर यहाँ तक? चलें आगे. ओके, नेक्स्ट अब है सिंपल सेंटेंसेस. करवाती हूँ मैं आज आपको. सिंपल सेंटेंसेस में आप कैसे चेंज करेंगे. सिंपल यानी असर्टिव सेंटेंसेस. ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में आप कैसे चेंज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू सम चेंजेस. डायरेक्ट स्पीच के अंदर डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पर आप जो प्रेजेंट टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा. यहाँ पर पास्ट टेंस. लेकिन शर्त क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है ना हमारा पास्ट में होना चाहिए. अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में क्या क्या आते हैं. हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर. ठीक है, ये किस में आते हैं. कॉन्टिन्यूअस. और सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है. V1. किसमें आता है ये. सिंपल प्रेजेंट में. और हैज़, हैव प्लस V3 किस में आता है. परफेक्ट में. क्लियर. तो प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाएगा. पास्ट टेंस में. तो इज, एम, आर किस में चेंज हो जाएंगे. वॉज, वर. क्लियर. और V1 किस में चेंज हो जाएगा. V2 में. और हैज़, हैव, हैड में. हैड प्लस V3. क्लियर यहाँ तक. ओके. यानी डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. तो प्रेजेंट टेंस का हमारे पास क्या है, जो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वहाँ क्या यूज़ करते हैं हम. इज, एम, आर. तो वो किस में चेंज हो जाएगा. वाज, वर में. V1 किस में होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में. वो किस में चेंज हो जाएगा. V2 में. हैज़, हैव प्लस V3 किस में होता है ये. परफेक्ट में. सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में. और ये किस हैज़, हैव विल बी चेंज इनटू हैड प्लस V3. अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्या होता है उसमें यूज़. हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस V4. यही होता है ना. इसको हम किस में चेंज कर देंगे. हैड, बीन प्लस V4. सेम रहेगा. सिर्फ हमारा क्या होएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज होएंगी. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब. क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सिंपल प्रेजेंट में. नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में डू और डस. यही होती है ना, डू और डस. तो ये किस में चेंज हो जाएंगी. डिड में. नेगेटिव में डिड हो जाएगा. ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस हमारा किस में चेंज हो जाएगा. पास्ट टेंस में.
आखिर में आपसे बता रही हूँ कि शर्त क्या है, इफ द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन एंड ओनली देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, पास्ट टेंस का इसमें चेंज हो जाएगा। पास्ट टेंस देखिए, सिंपल पास्ट V2 आता है, V2 किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट तो आप ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो, हैड प्लस V3। क्लियर? हैड प्लस V3। नेक्स्ट है वॉज वर किस में आता है? प्लस V4 किस में आता है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, वॉज वर भी तो एक तरह से सेकंड फॉर्म ही तो है। किसकी सेकंड फॉर्म है? ये बी की सेकंड फॉर्म है। बी वॉज बीन मैंने करवा था ना। वॉज वर किसकी फॉर्म है? ये बी की सेकंड फॉर्म है। ये सिंगुलर में आएगा, ये प्लूरल में आएगा। ठीक है, वॉज वर देन इट विल ऑल्सो बी चेंज इनटू, देखो, हैड। ठीक है, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और वॉज वर किस में चेंज हो जाएगा? बीन। ठीक है, बी वॉज बीन, थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी? प्लस बीन। जहाँ पर हमारी बी वर्ब मेन वर्ब होएगी तो वहाँ पर मेन वर्ब का मतलब क्या है? वॉज वर। तो वॉज वर किस में चेंज हो जाएंगे? हैड बीन में। क्लियर? ये टेंस क्या बन गया हमारा? और वॉज वर के बाद हमारा क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर? V4 पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, दैट विल बी सेम V4। तो ये टेंस कौन सा बन गया हमारा? हाँ, पास्ट परफेक्ट। क्या बन गया हमारा? पास्ट परफेक्ट। क्लियर? यहाँ भी तो पास्ट परफेक्ट था। ये हैड बीन प्लस V4, यहाँ पर भी क्या? हैड बीन प्लस V4। यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, नेक्स्ट है थर्ड फॉर्म, हैड विल बी सेम। यहाँ पर हमें लगा रही हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है हमारे पास? हैड प्लस V3, that will be same. Past perfect tense will be in past perfect. Had plus V3, no change. Okay, no change. नेक्स्ट चलते हैं हम हाउ टू चेंज। और हम विल शैल को किस में चेंज करेंगे? विल शैल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किस में चेंज हो जाएगा? फ्यूचर टेंस क्या है हमारा? विल और शैल। ठीक है, प्लस V1। ये पास्ट में जाए क्या बन जाएगा? वुड, शुड, वुड, शुड एंड कैन। ये हुआ फ्यूचर टेंस हमारा। ठीक है, और फ्यूचर टेंस की बजाय हमारा विल शैल किस में आता है? मॉडल्स में भी आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ मॉडल्स के लिए ले रही हूँ विल शैल।
इसमें चेंज हो जाएगा वुड शुड। ये ध्यान से सुनो, विल और शेल भी दोनों इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वुड में ही चेंज होएगा। और यहाँ भी अगर यहाँ पर एडवाइस की बात है, यानी वहाँ पर शुड में चेंज करने के बाद एडवाइस की बात आ जाए, एडवाइस सजेशन ऑलरेडी इसके लिए आ जाए, तभी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हम शेल की जगह क्या यूज़ करेंगे, विल ही वुड यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, कैन किसमें आ जाएगा, वुड में। ये है डायरेक्ट्स, दैट इज इनडायरेक्ट। कैन, कुड, may, might, must, मस्ट का मतलब क्या है, जब मैंने आपको मॉडल्स करवाए थे तब भी बताया था। मस्ट का मतलब क्या है, हैव टू, और हैव टू चेंज इनटू हैड टू। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। फिर मैं एक बार बताती हूँ आपको, विल शैल विल बी चेंज इनटू वुड शुड। अगर यहाँ पर शैल का यूज़ हम कर रहे हैं, वो तो हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए, लेकिन जहाँ पर हम इनडायरेक्ट स्पीच में वही बात सिर्फ एक सिंपल फ्यूचर के लिए आ रही हो, तो हम शुड की जगह वुड ही यूज़ करेंगे। और अगर वहाँ पर कोई एडवाइस की बात चल रही है, सजेशन की बात है, तभी हम ये मॉडल्स के अंदर उसमें शुड में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको वुड में ही चेंज करेंगे। क्लियर। आप ऐसे कंफ्यूज होएंगे, इसलिए मैंने इसको काट दिया है, क्योंकि विल ऑल्सो बी चेंज इनटू वुड और शैल विल बी चेंज इनटू वुड। शैल बी वुड में चेंज होएगा जहाँ पर सिर्फ एक फ्यूचर टेंस की बात है। और अगर मॉडल की बात है और सजेशन की बात आ जाए, एडवाइस और सजेशन की बात आ गई शुड लगाने के बाद, तब हम शुड लगाएंगे। अदरवाइज विल की जगह हम वुड ही लगाएंगे। ठीक है। मे, माइट, मस्ट इज इक्वल टू हैव टू, तो हैव टू विल बी चेंज्ड इनटू हैड टू। क्लियर। नाउ वी आर डूइंग सम एग्जांपल्स ऑफ assertive sentences. These are some assertive sentences. She I love going to school. I love going to school. ठीक है। यहाँ पर क्या है, उसकी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। वो अपनी हैबिट को बता रही है एट प्रेजेंट। ठीक है। उसने कहा, उसने बताया कि वो स्कूल में जाना पसंद करती है, स्कूल में जाना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो होना चेंज नहीं होगा। शी said that, यहाँ पर कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। आई की जगह क्या जाएगा, शी, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। शी लव्स। आई लव तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग आया था, सिर्फ ऐसे ही नहीं लगेगा, लेकिन शी क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है। शी लव्स गोइंग टू स्कूल, कोमा, इन्वर्टेड कोमास रिमूव। क्लियर। इनकी जगह क्या जगह, दैट कंजंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, he said, he said the train is coming. ठीक है। यहाँ पर हैबिट नहीं है कोई,
जनरल सी बात है, उसने बताया कि ट्रेन आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि ही सेड दैट, उसने बताया कि, सेम रहेगा ये, दैट द, ओके क्या है ये, नाउन है, सेम रहेगा, नो चेंज, ट्रेन वॉज कमिंग। क्योंकि अब जब वो है वही बात किसी और को बता रहा है, तो वो क्या होगा, जो पीछे जब वो बता रहा था तो वो पास्ट में चला गया वो बात, ओके। द ट्रेन वॉज कमिंग। नेक्स्ट है, he said Ram has not turned up yet, राम अब तक वापस नहीं आया है, नहीं लौट कर आया है। तो क्या आएगा, he said that, राम नेम है तो नेम को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, राम हैज का क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, हैड नॉट टर्न्ड। बहुत ईजी है, पैसे वैसे भी ईजी है बेटा। इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है, मेन जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका टेंस पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। सेज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सेज नहीं होना चाहिए, हैव सेड नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस तो होना ही नहीं चाहिए। पास्ट टेंस का कोई भी पार्ट हो, सिंपल पास्ट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, रिपोर्टिंग वर्ब में वट एवर, बट टेंस शुड बी इन पास्ट। Then and only then the tense of the reported speech in indirect speech will be changed, has will be changed into had। यहाँ पर मेन जो है हमारा वो हमने ध्यान देना कि कंजंक्शन आएगा या नहीं आएगा, और दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको किस में चेंज करना है, बाकी हमारा लगभग सारा सेंटेंस ऐसा ही रहता है। क्लियर। नेक्स्ट, these two sentences were of affirmative and this sentence is negative, because negative and affirmative both are the part of assertive sentences, okay। next है, he said it may rain today, it may rain today, he said, यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, he said to me, he said to me, he, क्योंकि said जो है वो चेंज हो जाता है told में, he told me that it might rain that day, it might rain that day, okay, it might rain that day। next है, she said to him, she said to him, I must go home at once, I must go home at once, मुझे एकदम घर जाना है, ठीक है, अचानक कोई काम हो गया और मुझे घर जाना है। she said to will be changed into told, she told him या informed him, कुछ भी लगा सकते हैं, she informed him, she told him, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। she told him that I फर्स्ट पर्सन, she must का क्या बताया था मैंने, must is equal to have to and have to will be changed into had to, she had to go home at once,
एट वंस। ओके बच्चे, ठीक है। अब हम चलेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर, कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता है। क्लियर? जैसे क्या है सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड, द टीचर said India became free in 1947. ओके, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है। क्लियर? तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में सेम ही रहेगा। The teacher said that India became free in 1947। क्योंकि यहाँ पर हम इस चीज़ को, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, इसको हमें चेंज नहीं करना है, ये सेम ही रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे बिकेम, सेकेंड फॉर्म है बिकेम, तो हम ये नहीं कह सकते हैड बिकम। क्लियर? समझ आया? इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, क्योंकि वो उस टाइम पर हम यही नहीं कहेंगे, किसी को बताएंगे तो कि इंडिया 1947 में फ्री हो चुका था। ठीक है, फ्री हुआ, हम यही बोलेंगे ना कि फ्री हुआ था, फ्री हुआ। इंडिया को आज़ादी कब मिली? इन 1947। तो यहाँ पर जो टेंस है वो सेम रहेगा, जिस टेंस में यहाँ पर बताया गया था उसी टेंस में यहाँ पर हम सेम बताएंगे। क्लियर? अदर थिंग, अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, ये तो क्या हो गया हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई जनरल ट्रूथ है, ये हो गया हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट। नेक्स्ट है कोई जनरल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ। जैसे द टीचर सेड टू the students, the sun rises in the east। यू नो, जो डायरेक्शन होती है हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उससे पहले क्या होता है? द आर्टिकल लगता है। क्लियर? कोमा, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। तो ऐसा तो है नहीं कि सन जो है वो पहले ईस्ट में राइज होता था लेकिन अब नहीं होता है, ये तो क्या है? जनरल ट्रूथ है, ऐसे ही होता रहेगा। तो यहाँ पर सेम रहेगा, देयर विल नॉट बी चेंज्ड। द टीचर टोल्ड the students that the sun rises in the east, that the sun rises in the east। नेक्स्ट चलिए, अगर ऐसा सेंटेंस है जो कि पास्ट में, सिंपल पास्ट में है या पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, तो वो नॉर्मली चेंज नहीं होता है।
इस टाइप के सेंटेंस, जैसे he said, when we lived, या were living in Bombay, we often went to beach. We often went to beach. इसमें कौन सी सेंस आ गई? इस टेंस में इसमें आ गई है पास्ट की हैबिट की, ठीक है, कि जब हम वहाँ पर रहते थे, वहाँ रह रहे थे बॉम्बे में, तब हम ऑफन प्राय बीच पर जाते थे। वेंट टू, गए नहीं, जाते थे। क्लियर? तो रिपोर्टेड में क्या आ जाएगा? ही सेड दैट व्हेन किसके लिए आया है यहाँ पर? टाइम के लिए। व्हेन वी क्या है?